لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله عز وجل في موضع آخر ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه لما عمل بعد الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام صدر مجلس جناب مولانا حسن حبیب فلاحی صاحب، صدر نیپال مسجد کونسل، رکن مرکزی مجلس شورا اسلامی سنگھ نیپال، اور ضلع مورنگ کے سچیو جناب حافظ محمد فاروق ندوی صاحب، اور الہرا ایجوکیشنل سوسائٹی کے آفس سیکریٹری جناب مولانا تنویر عالم فلاحی صاحب، اور یہاں ہمارے سامنے موجود آپ تمام معززین، بلواہی سے ہمارے حاجی صاحب تشریف لائے ہیں، اور ہمارے اور ایک معزز ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں، اور بھی دیگر آزو بازو کے گاؤں سے جو حضرات تشریف لائے ہیں، اور یہاں اس بستی کے بزرگ، نوجوان اور میرے نہایت ہی عزیز ترین پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، آپ سب کی خدمت میں سلامتی کی دعا پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنے بات جو چلا سے ہم تو اردو میں کر لیا، لیکن آگو کے جتنے بات سے انشاءاللہ اپن بھاشا میں کہے کے کوشش کروا تاکہ ماں بہن اور جو بھی سے بچہ سے وہ بڑھیا سے سمجھ سکے. کریے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں کیسے کہ ہم ہر قوم میں ڈراوے والا اور خوشخبری دے والا اوकर भाषा जाने वाला लोग का भेजना चाहिए. तो अपन भाषा में जो बात कहल जाए ना तो समझे ला आसान है. हम उर्दू बोलबे अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोग समझे से, लेकिन बाल बच्चा के समझे कहीं भै सके दिक्कत भै जाए. तो अखनी जे कुरान मजीद के जे आयत तिलावत करल गेले ओकर तशरीह हदीस के जे टुकड़ा एक पेश करल गेले ओकर तशरीह से पहले सबके नज़दीक सबके सामने हम इस्लामी संघ के कनी तारुफ पेश करे ला चाहे छियै. कते जना छै जे इस्लामी संघ का जाने छै? हाथ उठवा कर देखिए. इस्लामी संघ का जाने छै? 1 2 3 4 माशाल्लाह. इस्लामी संघ का एरिया में खास तौर पर मोरंग जिला के विराटनगर से पूरब बहुत जना डॉक्टर साहब, डॉक्टर शरीफ साहब के वजह से भी लोग जाने से. अल्लाह ताला डॉक्टर साहब का जज़ाए खैर दे. आमीन. और इस्लामी संघ एक दीनी जमात थी. इस्लामी संघ एक दीनी जमात थी. एकर नस्बुल आइन, एकर अकीदा एकदम वाज़े से, कोनो झोल नहीं से. इस्लामी संघ के अकीदा से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा की बुनियाद से इस्लामी संघ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला का इलाह मानना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपन उसवा मानना. यानी दुईटा बात वाजे भेले कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے علاوہ کوئی طریقہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اے دھرتی پر رہتے ہوئے ہم سب جے بھی کام کربے، جے بھی کوشش کربے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائل طریقہ کے مطابق کربے تو ہماری یہ دنیا انشاءاللہ خوشگوار رہتے، اور مرے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمار اور سب سے آپ سب سے خوش بیک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ٹھکانہ ہمارا اور تورا دیتے وہ جنت چھے۔ اور اسلامی سنگ کے نصب العین کی چھے؟ اسلامی سنگ اے دھرتی پر ای کوشش کر رہا چھے کہ انسانی زندگی کے تعمیر کے ذریعے، انسانی زندگی کے تعمیر مطلب انسانی زندگی کو وہن بنانا جہن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے لا چاہے چھے، جہن دیکھے لا چاہے چھے۔ اللہ کی دیکھے لا چاہے چھے اپن بندہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اے دھرتی پر جتنے بھی چیز پیدا کر لتے، اکھنے مولانا کے گفتگو میں کال کر کہ ایمان جکرا نصیب ڈھا رہے چھے تو اے دھرتی کے سب سے بہترین چیز چی، اور اگر ایمان نصیب نہیں چھے تو جبتے چمک دمک رمک کے ساتھ زندگی گزارا بس ایتھے تک چھے، اللہ کے نزدیک اگر कोनो قیمت نہیں چھے۔ اسلامی سنگ کی چاہ رہا چھے کہ دھرتی پر جبتے بھی انسان بسے والا چھے سب کے محبت اپن دل میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیدا کرل چیز، تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو بہت ہی قیمتی، بہت اہم، بہت ہی عزت والا بنا کے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم بنی آدم کا یعنی آدم کے اولاد کا ہم عزت والا بنانا چاہیے۔ کدی والا بنانا چاہیے؟ عزت والا بنانا چاہیے، اور یہ وہ وقت تک عزت والا رہ سکے چھے جب تک یہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے، اور اگر اللہ کے احکام کے مطابق اگر زندگی نہیں گزر لے، اللہ کے بتائل طریقہ کے مطابق اگر زندگی نہیں گزر لے تو پھر وہ رب کہے چھے کہ ہم اقرا جیسے سورۃ 3 میں پڑھوا تو اللہ تعالیٰ کہے چھے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم جتنے کچھ بنانا چاہیے وہ میں سب سے بہترین سانچہ میں، بہترین ڈھانچہ میں ہم انسان کو بنانا چاہیے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر وہ رب جو ہمارا تورا پیدا کر لکے کی کہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان کا ہم سب سے بدترین جگہ میں پہنچا دے کنن کا کل کے جب یہ اپن عزت سمجھے چھے، اپن خالق کا پہچانے چھے، اپن مالک کا پہچانے چھے، اوکر اوپر ایمان لاوے چھے اور اوکر بتائل طریقہ کے مطابق زندگی گزارے چھے تو اللہ تعالیٰ کہے چھے کہ سب سے باعزت چھے، سب سے باعزت چھے۔ اور اگر وہ طریقہ سے ہٹ جائے تو قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی کہل کے کہ یہ چوپایا یعنی جانور سے بھی بدتر چھے، جانور سے بھی بدتر چھے۔ جانور کے تو کوئی قیمت چھے، لیکن عقل، شعور، دل، دماغ اور یہ آنکھ کان سب دھیال جکرا بوجھے کے سمجھے کے صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے وہ سمجھ رہا چھے پانی کا پانی، چاول کا چاول، مکئی کا مکئی، دھان کا دھان، کپڑا کا کپڑا، زمین کا زمین، سونا کا سونا، چاندی کا چاندی، لیکن سمجھ نہیں پائے رہا چھے تو وہ خالق کا نہیں سمجھ پائے رہا چھے، وہ مالک کا نہیں سمجھ پائے رہا چھے، اوکر احکام کا نہیں سمجھ پائے رہا چھے، اوکر بتائل طریقہ کا نہیں سمجھ پائے رہا چھے، بلکہ دیکھی اندیکھی کر رہا چھے، دیکھی اندیکھی کر رہا چھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہل کے کہ جے لوگ دنیا میں سارا خیر بھلائی کا دیکھ رہا چھے لیکن آنکھ من کا زندگی گزار رہا چھے، کان میں ٹھوسا لے کر زندگی گزار رہا چھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ کل قیامت کے دن جب اوکر ہم اٹھاوے تو انہیں اندھا اٹھاوے، اوکر اندھا اٹھاوے، وہ دیکھ رہا چھے سب حقیقت کا، لیکن سارا حقیقت کا ٹھکرا رہا چھے اور منمانی زندگی گزار رہا چھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ سمجھے نہ نہیں سمجھے سے بات نہیں چھے، لیکن جان بوجھ کا اندیکھی کر رہا چھے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم آئے ہی آنکھ والا اندھا چھے، سن کا دماغ سن کا انسونی کر رہا چھے، کہ حقیقت میں ہم اندھا بنا کے اٹھاوے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے حفاظت فرماوے۔ تو اسلامی سنگ کوشش کی کر رہا چھے کہ اسلامی سنگ ہم سب مسلمان بالخصوص
अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम का समझे वाला बन जाए और अल्लाह ताला जे हमार और तोहर ऊपर जे फरीजा आयद करना चाहिए, वो कौन फरीजा चाहिए कि हम इस्लाम के ई पैगाम का, इस्लाम की सच्चाई का, इस्लाम के ई और नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए जिंदगी गुजारे के खुशगवार तरीका वो लोग सब तक पहुंचा दिल जाए जकर तक अपनी तक नहीं पहुंच ले, जकर तक अपनी तक नहीं पुग ले। इंसान के तामीर चाहिए, इंसानी जिंदगी के तामीर चाहिए एक जरिया से, यानी इंसान का जन्नत में ले जाने वाला बना दे, ये इस्लामी संघ की कोशिश चाहिए। और ये कोशिश के जरिया इस्लामी संघ चाहे कीजिए अल्लाह तबारक तआला के खुशनुदी, अल्लाह ताला के खुशनुदी लाकर इस्लामी संघ कोई अलग चीज नहीं छे। एत देखो तोरा जत्ते आदमी जे भी बात करता वो कुरान और हदीस के बात करता, और कुरान और हदीस के बाद आयत का जे भी कर वो कर बात काबिल कद्र छे। हम सब तोरा का दावत दै छियै ई बात के इस्लामी संघ का गहराई से मुताला कर, इस्लामी संघ से अपन आप को जोड़। इस्लामी संघ इस्लाम के मुकम्मल ज़ाब्ते हयात पेश करे छे, बुझल ने। इस्लाम कोई दुई तीन चारटा काम के नाम नहीं छे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाल के अपना सब पहले यहूदी सब गुजरले, नसरानी सब गुजरले, अल्लाह ताला ओकरा के किताब दिल के तो सब की करे, अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, के जे मन में लगे ओकरा करे आ जे मन में नहीं लगे बढ़िया ओकरा छोड़ दे, या जे मुश्किल लगे करे लू छोड़ दे। आइ हमरो और के हाल देख करीब करीब वही भए गेल छै। नमाज पढ़े ला बड़ा शौक से पढ़े छी, लेकिन सूदो बड़ा मजा से खाई छी, छै ने। नमाज पढ़े ला बहुत बढ़िया से नमाज पढ़े छी, लेकिन हमरा आर के जमीनो जत्था दोसर के दबाए ले छी। नमाज पढ़े छी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जे औलाद हमर कोख से दिल के बेटा और बेटी के शक्ल में बड़का बड़का हाजी, बड़का बड़का नमाजी, बड़का बड़का तस्बीह खट 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 मारे छिए, लेकिन बेटा का तो बड़ा अहमियत दै छिए। जमीन जत्था में बेटा के हक समझे छिए, लेकिन बेटी के हक नहीं समझे छिए, बेटी के हक नहीं समझे छिए, दिमागे में नहीं जाए उ सब बात, बुझले ने। और सब कुछ समझ में आवे छे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम जो मुकम्मल अहकाम छे ना, अल्लाह तबारक व तआला की कहै दुकान उदखुलू फिस्सिल्म काफा, मुकम्मल इस्लाम के पैरवी कर। कि कनी मनी एन्ना से कनी ओन्ना से लेकर इस्लाम के पैरवी ई मुकम्मल नहीं कर। इस्लामी संघ यह दावत दै छे, इस्लामी संघ के सोच यह छे कि अगर कनी मनी चीज पर अमल भए रहल छे, एकरे मुकम्मल नहीं समझना छे, बल्कि इस्लाम के मुकम्मल कंसेप्ट का कि इस्लाम हमरा माँ के पेट से लेकर धरती में जब तक रहबे और कबर में जब तक पहुंच जाबे, ये बीच के जो जिंदगी अल्लाह ताला देना चाहिए चंद रोजा, ये मुकम्मल जिंदगी गुजारे के तरीका इस्लाम दे छे। और इस्लामी संघ यह दावत घूम घूम कर देश में अपन गांव गांव करिया सब जगह लोग के समझावे की कोशिश करे छे कि मुकम्मल इस्लाम के पैरवी करे, बुझले ने। तो हम जे आयत पढ़ लिया इस्लामी संघ के बारे में बतवेला 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा भी बतावो इस्लामी संघ के जो कोशिश है, जो मेहनत है, मुल्क में कौन कौन फील्ड में काम करे छे, तो बहुत वक्त दरकार छे। लेकिन एकदम छोटकरी में जे बात तोरा के सामने हम रखे कोशिश कर ले कि इस्लामी संघ एक दीनी जमात छे, जना और दीनी जमात से तोरा मोहब्बत छे, अहिने इस्लामी संघ के मोहब्बत तोर दिल दिमाग हमर तोर दिल दिमाग खून के कतरा कतरा में बैठ जाना चाहिए कि यो दीन के लागी, इस्लाम के लागी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के लागी ए धरती पर कोशिश करे वाला लोग सब छे, बुझे ना। ओकर से मोहब्बत होना चाहिए, ओकर से अपना आपका ताल्लुक पैदा करना चाहिए, दिल खोल के एकदम जबान के साथ हाँ इस्लामी संघ के साथ हम छिए। तब इस्लामी संघ का भी एक एहसास है कि छोटी बैरिया में भी हमरा के एक बढ़िया हमरा के इज्जत छे, ओतऽ जाय छी हमरा के काम समझे छे, और काम जब तोह समझ जेबा ना कि इस्लाम की कह रहल छे, अल्लाह तबारक तआला हमार और तोर कंधा पर कौन जिम्मेदारी दे रहल छे, जब इस जिम्मेदारी का समझ जेबा तो इस जिम्मेदारी के अदा करे खातिर तड़प उठबा, तड़प पैदा भए जेतै। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तोरा के आवत जावत अब इस्लामी संघ के ऑफिस विराटनगर से इंशाअल्लाह ताल्लुक बढ़ते, और ये ताल्लुके के बुनियाद पर तोरा का अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी संघ में गेल दावत दिल, और ओतऽ से जते जना कभी अल्लाह ताला तौफीक दिल के एलिए देखे छी हमरो और का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी भेले। अल्लाह ताला तोरा के मोहब्बत कायम रखा। अब हम
5-6 मिनट के अंदर जो आयत पढ़ लिया ना, वो आयत के तर्जुमा और कुछ मतलब बताकर तो हम वो चीज बताकर इंशाल्लाह अपन बात खत्म करबे। हम तो आपके सामने एक आयत पढ़ लिया। अल्लाह ताला की कैसे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। क्या वो लोगो जो अल्लाह पर ईमान लाए, ए वो सब, ए हमार बंदा, ए हमार बंदी, ए हमार प्यारा प्यारा हमार पर ईमान लावे वाला लोग, सुना अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, हर हाल में अल्लाह से डर। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरे के की मतलब है तो अल्लाह ताला तुरंत बता के वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अगर तोरा अल्लाह के खौफ छ, अल्लाह के डर छ, और ये बात तोहर दिल में छ के मरे के बाद हमरा अल्लाह के सामने हाजिरी देला छे, वल तंजुर गौर कर, वल तंजुर फिक्र कर ई बात के कि मरे के बाद के जिंदगी के लागे तू की कोशिश कर रहा छे। गौर से सुनिए हमार बात, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर एक आदमी को सोचना चाहिए, हर एक आदमी को फिक्र करना चाहिए, गौर करते रहना चाहिए अपन जिंदगी के तगोदो पर, अपन जिंदगी के दिन रात के कोशिश पर कि वो काल के लागी यानी मरे के बाद के लागी की कर रहा छे। अब हम सब लोग गौर करब, हम झूठ बोलकर कबर के जिंदगी के तैयारी कर सके छिए, कबर में फायदा देते, सूद खाकर कबर में फायदा पहुंचते हमरा, अपन पड़ोसी के जमीन के आली कटते कटते जमीन हड़प कर कबर में फायदा पूछते, बेटा के हक देवे बेटी के हक नहीं देवे कबर में फायदा पूछते, भाई के हक दबा के खा देवे कबर में फायदा पूछते, पड़ोसी में भूखा लोग सुते छे हम भर भर पेट भात खाई छिए कबर में फायदा पूछते, माँ बाप का तड़पा रहल छिए और अपन बाल बच्चा के साथ खुशी के जिंदगी गुजार रहल छिए। अपन घर के बिस्तरा बहुत बढ़िया, लेकिन बुढ़वा बुढ़िया के बिस्तरा पर मैल कुचैल लेर बहकल, ओकर बिस्तर के तकिया के खोल बदले वाला कोई नहीं, ओकर बिस्तर पे चादर बदले वाला कोई नहीं, ओकर सीरत के खोल धोवे वाला कोई नहीं। जे माँ बाप हमरा पैदा कर लगे, जे अपन पेट में राख लगे, ओकर ला बोले के तरीका हमर अलग, हमर व्यवहार ओकर साथ अलग, ये सब चीज हमरा कबर में फायदा पहुंचाते यकीनन नहीं पहुंचाते। अल्लाह कहे वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। सब करा गौर करा, सबका मरना छ, काल तू कबर में पुगबा तो ओकर खातिर की तैयारी कर रहल छ, अल्लाह ताला कह रहल छ वत्तकुल्लाह। अल्लाह फेरो कहे छे डरा, अल्लाह से डरा, इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। तोरा के जे कुछ कर रहल छ दिन के उजाला में रात के अंधेरा में सब कुछ अल्लाह देख रहल छ, सब कुछ अल्लाह देख रहल छ। तो ये जे प्रोग्राम राखला अल्लाह ताला कुरान में कहे छे वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात है ना ईमान वाला के सामने में, तो ईमान वाला की जिंदगी बदल जाना चाहिए, ओकरा फायदा पहुंचावे छे। कुरान और हदीस के बाद, नबी के बाद, अल्लाह के बाद सुन का अगर हमर आय के बाद के जिंदगी नहीं बदला ले तो समझा कि हमारे ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ल, कोई फर्क नहीं पड़ल। और ये जलसा रख दिला, सुन ले लिए, मैं बहन भी सुनना चाहिए गौर से कि पैसा देना है बस अब करो कठिन कठिन जलसा रख ला, मकसद चाहे जे कुछ भी हुआ, लेकिन जे भी मकसद रहा, लेकिन मकसद अखनियो जब ये जलसा चल रहा है अखनियो अपन नियत दुरुस्त कर लिया कि और सब चीज तो हेते रहते, लेकिन असल चीज ये चले कि हम आलिम उलमा का एक खातिर बोला लिए कि हमारे सामने कुरान पढ़ कर सुनाते, हमारे सामने हमारे नबी के बात बताते, और ऐसा हम अपन जिंदगी का तब्दील करवे इंशाअल्लाह। हाँ तो देखते करते जना तब्दील करे के नियत से सुने जाए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मस्जिद भरल रहता है इंशाअल्लाह, सारा चीज जो हमारे मामलात से वो मामलात दुरुस्त है इंशाअल्लाह। तो की करे वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर मर्द कभी, खातून कभी, माँ कभी, बहन कभी, बेटी कभी, बाप कभी, सबका कोशिश की करना चाहिए कि कदम फूंक फूंक कर चलना चाहिए कि हम जे भी काम कर रहा छिए कल हमारा कयामत में कबर में इस चीज से फायदा पुगते कि हमार कबर जहन्नम के गड्ढा बन जेते।
बुझल ना, ई कोशिश करना है, करबे इंशाल्लाह सबका। फिर अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में जे एक आयत और पढ़ लिया अल्लाह ताला कैसे कि वमन अरादल आखिरत व सआ लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। देखा एक काफिर की जिंदगी और एक मोमिन की जिंदगी में फर्क है, वो फर्क बुझाइए का पड़ता। मोमिन है धरती पर जिंदगी गुजारे छे, जे भी ओकरा सुख मिले छे या दुख मिले छे तो उ सब अपन कन्ना निस्बत करे छे, अल्लाह के तरफ निस्बत करे छे। सुख मिले छे तैयो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमार कोनो कोशिश के नतीजा नहीं, कोशिश कर लिए वो अलग मसला छे, लेकिन अल्लाह दिल के, अल्लाह के शुक्र छे, अल्लाह दिल के। अब कोनो तकलीफो पहुंचे छे तो वह फिक्र, वह सोच, वह अकीदा कि यो अल्लाह दिल के ये हमरा हौसला बख्शे छे, हमरा सब्र के तौफीक मिले छे। इस चीज से वावेला हम नहीं करे छी ना, लेकिन एक सोच मोमिन के और काफिर में, काफिर के मतलब कहे के मतलब जेकरा अल्लाह ताला अखनी तक ईमान के दौलत से नहीं नवाजलक है, ओकर तक ईमान पहुंचावे के जिम्मेदारी ककर छे, ककर जिम्मेदारी छे, कहाँ तक हमर तोर जिम्मेदारी छे। बहुत सारा लोग के सोचाई की छे कि जब तक मुसलमान नहीं ठीक हेते तो दोसर लकनन के पुगबे। ई सोच 100% गलत छे, 100% गलत। कथी ला देखा हज्जतुल वदा छे ना, जखनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज करलके, सब कर कहे छे बात, आखिरी हज करलके तो सहाबा के तादाद करीब 1,25,000 चले, 1,24,000, 1.25 लाख अंबिया, 1.25 लाख सहाबा कहे छे कि हज्जतुल वदा में करीब शरीक छे। और अल्लाह के नबी शासन की कहलके बल्लिगु अन्नी वलौ आया, तोरा अगर एक आयत के बराबर भी हमार सब कोनो चीज मिलल छ, दीन के बारे में जानना छ तो ई चीज दुनिया में फैला द, ई चीज दुनिया में फैला द। तो ओतऽ से जे जखनी हज्जतुल वदा भेले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के साथ हज करलके तो तकरीबन कुछ सहाबा के अलावा करीब करीब सोचा कि सब सहाबा हज में पहुंच गेल रहे। और वही में से 10,000 सहाबा के करीब कबर अरब के दुनिया में मिले छे, और 1,15,000 सहाबा दुनिया के अलग अलग गोशा में भी चल गए। तो दुनिया के जे हिस्सा में वो सब पुगले तो तकरा सबके ईमान के दावत दिल के कहते वो सब मोमिन चले। हमरो और के 1 मिनट के लागी सोचा, अगर हमार बाप दादा लोग को ईमान के दावत ला नहीं एतिए तो जय मुल्क में जय हिसाब से हमरा के जिंदगी गुजारे छिए तो हमरो और के कथो कोनो गाछी को पूजित रहतिए ना। ई अहमियत को बुझा पड़ले। अपन घर के इस्लाह जरूरी छे, लेकिन ओकरे फिक्र में रह कर अपन ई जे हमर भाई बहन छिए, आदम के औलाद छिए, हमरा सबके यकीन छे कि अगर बेईमानी के हालत में सब चल जेते तो ई सबके ठिकाना जहन्नम बन जेते। कल हमरा के गरिबान पकड़ लेते कि तू सब कुछ हमर से लेन देन करे रही, हमर खेतो करे रही, हम तोर खेत करे रहियो, आपस में सब कुछ रहे, ब्याह शादी में बोलवे रही, सब कुछ करे रही, सारा दुख सुख कहे रही, लेकिन तू ही कहियो ना बता ली कि मरे के बाद अगर तू अल्लाह का मान करने जेबी तो तोहर हमर ठिकाना अलग अलग भै जेते। अगर तू बताना रहती तो हम तोहर ई बात पर अथी देवे, ध्यान देती और अल्लाह तआला पकड़ लेते, हमरो पकड़ते तोरो पकड़ते। ऐला कर ऐसा अहद करक इंशाअल्लाह अपन उठे बैठे वाला जे भी भाई बहन छे गैर मुस्लिम, वो हमर एक निस्बत छे ओकर से, हमर वो के छिए आदम के औलाद छिए, हमर भाई बहन छिए। हमर भाई बहन से मोहब्बत नहीं होना चाहिए, हमरा तड़प होना चाहिए दिल में कि कल हम जन्नत में जब जहन्नम में चल जेते तो ओकरा ईमान के दावत देना, ईमान के बारे में बताना, इस्लाम के बारे में बताना, कुरान जना हमर लागे छे ओकरो लागे छे। बहरहाल हम की करिए, वमन अरादल आखिरत व सआ लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। ई जे दीन हमरा आर के मिलल छे ना, ए दीन के पूछ के पढ़ल छिए तो कुरान का समझ के, और नहीं पढ़ल छे तो उलमा से समझ के एक एक चीज का मालूम करके कि जिंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन कौन तरीका कौन छे कौन कौन मौका के कौन कौन तरीका छे, वो तरीका का मालूम कर वही पर अमल जे करते और नियति रहते कि हमारे आखिरत की जिंदगी दुरुस्त भा जाए, तो अल्लाह ताला कैसे केहन कोशिश करे वाला के कोशिश काबिल कदर कोशिश छे, बेहतरीन कोशिश छे। अल्लाह ताला ओकर बदला ओकरा देते मरे के बाद भी, और ये दुनिया में सुकून की जिंदगी देते। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात की कहल के
अल्लाह के मिसाल करके कि अक्लमंद आदमी ऊ छिए जे मरे से पहले अपन मरे के बाद के जिंदगी के तैयारी करे छै। अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा लिमा अमिल बाद अल मौत, जे अपन ख्वाहिश का अपन नफ्स का रोंद के चले छै, मन में जे एले से नहीं करे छै, बल्कि मन में जे आबै छै ओकरा नापै छै, तोलै छै कि हमर नबी के तरीका छिए कि नहीं छिए, ये हमर अल्लाह के फरमान के मुताबिक छै कि ओकर खिलाफ छै। अगर खिलाफ रहे छै तो छोड़ दै छै, नबी के तरीका के खिलाफ छै तो छोड़ दै छै, और नफ्स के बुझा दै छै कि ई जे तू कह रहल छी करे ला ई हम तो नहीं करू, एहि लए के एहिमे तो हमर रब के नाफरमानी छै, एहिमे तो हमर रसूल के नाफरमानी छै। अगर ई कर लेलिए तो तू आए तो ओकसा रहल छी, लेकिन कल जहन्नम में सबके लए के जल्दी, हमर जिस्म के भी लए के जल्दी, तुहो जल्दी हमहूँ जल्दी सब जल्दी, रब के नाफरमानी है। तो नफ्स का बुझाना, नफ्स का समझा कर चलना, अपन आप का समझा कर चलना, रोंदना नहीं माने छै नफ्स। सूद ले मजा आबै छै, सूद में देखे छै फायदा मिल रहा है, जकात अदा करे वाला भए गेलै, जकात नहीं अदा कर रहा है, कंजूसी पैसा केना के देबै। इस मतलब के एक छोटका छोटका मिसाल दे रहा है, बहुत सारा चीज एने तो खोजबै ना तो बारीक बारीक चीज मिलता कि कत कत हमर से चूक भए रहा है, जत जत चूक हेतै उ चूक को दूर करते जाना और आगू बढ़ना, ईमान के हालत में जिंदगी गुजारे की कोशिश करना। कल के अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा लिमा अमिल बाद अल मौत, कि अक्लमंद आदमी ऊ छिए जे मरे के बाद अपन मरे से पहले तैयारी करे छै कि ओतऽ जेबै तऽ की मिलते हमरा, की लए के जेबै, बुझे ने। तो ऊ कोशिश करना, अक्लमंद ऊ छिए। आइ हमरा आर के अक्लमंद ककरा कहै छै, नमाज छोड़ दिलके, रोजा छोड़ दिलके, एना मारलके हाथ, ओना मारलके हाथ, ओना से लूट के लावलक, ओना से घोसैट के लावलक, ओना झूठ बोलले, ओना ई करलके, आ पैसा भए गेलै, घर बना लेलके 4-5 कोठा के, और बेसी पैसा भेलै तो सुपर स्प्लेंडर नहीं ऊ गुड़गुड़िया बेसी आवाज दे दे, कथी कहै बुलेट पर चढ़ले, या वो से बेसी पैसा भेलै तो 4 पहिया गाड़ी ला लेलके, और खूब शान तान देखा देलके, तो लोग कहै छै वाह ई तो कमाल के तैयारी करलक, बहुत कामयाब भए गेलो। लेकिन दुनिया कमाना कोई गलत बात नहीं है, यो बात याद रखिए। दुनिया रहता तब ना तू ज़कात देब, लेकिन हलाल तरीका से, बुझल ना, हलाल तरीका से। अगर कोशिश दुनिया कमबे के हलाल तरीका से तो इबादत चाहिए, याद रखिए। पैसा रहता तब ना हज करब, पैसा रहता तब ना गरीब की खिदमत करब। तो जब भी ई बात कहल जाए छै कि लूस घसूट, तो ई नहीं सोचिए कि पैसा कमाना गलत है। खूब मेहनत से पैसा कमब, खूब मेहनत से जत्ते कोशिश कर सके छै, नमाज पाबंदी से पढ़, हराम हलाल के ख्याल कर, और कोशिश करे कि इंशाअल्लाह हम इतने दौलत कमावे कि हम गरीब के मदद करवे, ज़कात देवे, हज करवे, मदरसा में पैसा लगावे, मस्जिद बनावे, सड़क बनावे, पानी पिए के इंतजाम करवे, गरीब यतीम बेवा के खिदमत करवे। समझे कि यकीन माने कि जिंदगी में भी जन्नत जैसा महसूस है, खुशी अल्लाह ताला इनायत करता। लेकिन जब लूट खसूट का पैसा इकट्ठा करवा तो वो पैसा हमेशा दिल में कसक पैदा करते रहता, सुकून नहीं मिलता, और मरे के बाद जब कब्र में पुगवा और अल्लाह के सामने भी जब जवाब दे पड़ता हमरा तोरा, तो तखनियो पकड़ल चल जावा, बुझे ने। तो अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा लिमा अमिल बाद अल मौत, अक्लमंद आदमी ऊ छै जे मरे से पहले मरे के तैयारी करे छै, बुझले। अल्लाह ताला से दुआ छै कि अल्लाह ताला हमरा सबके मरे से पहले अपन मौत के बाद के जिंदगी के तैयारी करे के तौफीक अता फरमावा। और अइने अब जे अपना आर पढ़ लिए लिख लिए, कते पढ़ लिए कते नहीं पढ़ लिए, लेकिन आवे वाला जे नस्ल है ना, जे हमर गोद में तोहर गोद में जे बाल बच्चा से, आइ से इरादा करे कि इंशाअल्लाह हम अपन बच्चा का बेहतरीन आलिम बनावे, बेहतरीन हाफिज बनावे। और एक साथ साथ देख इस्लाम में आजकल एक सोच और हमरा आर के बीच लोग की छोड़ देना है कि दुनिया के पढ़ाई चाहिए, आखिरत के पढ़ाई चाहिए। लेकिन कुरान के जब मुताला करबा ना, तो कुरान की कहे छै कि जत्ते भी उलूम छै, जत्ते भी उलूम छै ना, ई सब अल्लाह के बतायल छै, अल्लाह के बतायल छै। जब ओकर मकसद सही रहता ना, देखो मकसद सही नहीं रहता ना, तो कुरान पढ़ कभी इतने बड़का फितना वाला काम कर देता लोग कि जेकर बारे में सोचते रह जेबा। जना देख गुलाम अहमद कादियानी के नाम सुना छै ना, वो कुरान हदीस पढ़ल छै कि नहीं पढ़ल छै, लेकिन कते बड़का काम करलक। सलमान रुश्दी के नाम सुनना बा, वो बहुते पढ़ल छै, इस्लाम और के बारे में पढ़ल छै, लेकिन वो इस्लाम के खिलाफ काम करलक है ना। लेकिन एक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के नाम सुनबा, डॉक्टर असरार अहमद साहब के नाम सुनबा, डॉक्टरी के पढ़ाई पढ़ना छै, लेकिन जे इस्लाम के खिदमत ऊ करलक है, हमरा और ना टट्टू फुट्टू मौलवी
कि बस के बातें नहीं ओतऽ तक पुग सके। तो तरबियत पर सारा चीज निर्भर करे कि हम और तू अपन आल औलाद का की चीज लाइफ के खियाई छै, हराम छै कि हलाल छै। अगर हलाल रिस्क ओकर पेट में देव और सोच ही रहते कि अल्लाह हमार बच्चा का ए दुनिया में एहन बना दे कि तोहर मर्जी और तोहर रजा के खातिर ही जिंदा रहे, तो डॉक्टर बन के भी एहन काम करते, इंजीनियर बन के भी एहन काम करते कि इस्लाम का चमकाते दुनिया में, और अल्लाह ताला इस्लाम के जरिए ओकरा चमकाते। तो मेन चीज की डिपेंड करे कि अपन बच्चा के तरबियत सही करे, और बच्चा के तरबियत सही करे ला डॉक्टर जैसे का डॉक्टर इलाज करे ला ओकरा पहले डॉक्टरी सीखा पड़ते ना, नहीं सीखा पड़ले, सीखा पड़ते। और हमू कभी सुइया ला के हमू सुइया हानि देवे, एक छोटका चीज है सुइया हानना डॉक्टरी के मैदान में, की करी हम सुइया हानि सकै छियै, जब मन तब हानि देवे बेकार भए जेतै मामला। अहिने सीखा पड़ले, और बच्चा के तरबियत करे ला भी सीखा पड़ले, अपना आप का ट्रैक पर लावा पड़ले। पहले हम कहे बच्चा भे बाबू रे नमाज कथी नहीं पढ़ली, और हमार बच्चा देख रहा है हमारे बाप खुदे नमाज पढ़े, बच्चा को दुई झापड़ मारबे रे नमाज पढ़ कथी नहीं गेली। अब बच्चा देखे जे अब्बा अले खेलके पिलके बिस्तर पर दराज भए गेले, तो वो बच्चा कहियो मस्जिद जेते नहीं जेते। नमाज पढ़े ला सबसे पहले अपना लगा पढ़ ले, कुरान बच्चा का पढ़वे ला अगर नहीं पढ़े ला जाने चाहिए तैयो घर में कुरान खोल खोल कर देखा पढ़ ले, देखा पढ़ ले। तो बच्चा की सोचते है कि ई किताब हमरा पढ़ पढ़ ले, मान ला बिल फर्ज है मैं बहुते जना नहीं पढ़े जाने, लेकिन घर में कुरान है ना, फजर के बाद और मगरिब के बाद कोशिश कर कि कतनो किछो हेते लेकिन हम कुरान देख देख कर उंगली फेरत रहबे, उंगली फेरत रहबे, तो हमारे बच्चा देखते तो कम से कम कुरान से करीब हेते, बुझे ना। अब अगर पढ़े लिखे ले जाने छ तो कुरान का तर्जुमा के साथ पढ़ो, घर में माहौल कायम करो कुरान का समझे के। ईमान के जे मेन रिसोर्सेस है ना, जैसे से ईमान मिले से वो कुरान चाहिए, और कुरान से दूर हट कर सोचवा कि ईमान के सही चीज मिल जाए तो शायद के कथो खोजवा तो नहीं मिलता, बुझले ना। कुरान अल्लाह की किताब छे, ईमान के आखिरत के ए दुनिया में जिंदगी गुजारे का तरीका जे अल्लाह बता रहा छे वो दोसर लोग अलग थलग से नहीं बतवे सकते। जे अल्लाह बताते वो एकदम प्योर रहते, और प्योर जगह से इस्लाम का समझे की कोशिश करबे इंशाल्लाह हमरा, बुझले ना। अपन घर में माहौल कायम करबे, और बच्चा के तरबियत, बाल बच्चा के तरबियत, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई ए अंदाज में एक बस्ती में माहौल कायम करबे कि इंशाअल्लाह एक देखे तो 40 जन के घर से एठिमा, लेकिन आवे वाला दिन में ई बस्ती पूरे दुनिया में, ये देश ना खाली पूरे दुनिया में एठिम से हमार तोहर बच्चा एहन बन के निकल जाए कि पूरे दुनिया में इस्लाम के रोशनी फैला दे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कर कोशिश करबे। और फिर आखिर में ई टूटल फूटल बात एना ओना से जे कुछ भी तोरा के सामने पेश करल गेल, पहला चीज हम कही छियै कि अपना मजबूत तरीका से इस्लामी संघ के कंधा से कंधा मिलाकर चले के कोशिश कर। पहला चीज ई, ताकि कुरान और हदीस इंशाअल्लाह और इस्लाम के जो मुकम्मल तालीम है ना, जो इस्लामी संघ पेश करे छे, ऐसे ऐसे बुझते चल जावे, और वो हिसाब से अपन बाल बच्चा को ट्रैक पे इंशाअल्लाह लावे ले कोशिश करबे इंशाअल्लाह। दोसर चीज ई छे कि ई दुनिया एक न एक दिन हमरा और तोरा सबको छोड़ के जाए छे, उस दुनिया में हम की ला के जेबे, रब के सामने केना के पेश हेबे, ओकर फिक्र करे के साथ जे भलाई जे खैर के चीज हमरा मालूम छे भेले ये ओहि पर अमल करे ला अखनी से कोशिश कर देबे इंशाअल्लाह। और अपन घर बार में, अपन समाज में इस्लामी माहौल पैदा कर, एक दूसर का सलाम कर, एक दूसर के टांग खिंचा खिंची में नहीं रह ना, एक दूसर के मुआविन बना, एक दूसर का अगर कोई ककरो अंदर सलाहियत छे गाम में तो ई नहीं देखा कि ओकरे बेटा छिए, ई देखा कि हमरो बेटा छिए, बुझले ने, ई देखा कि हमरो भाई छिए। हमार गांव में ककरो अंदर सलाहियत छे तो ओकरा एनांग का पकड़ के ऊपर उठवा, एनांग का पकड़ के खींचा नहीं, बुझे। जब ए गांव के एकटा बच्चा आगू बढ़ते तो कल सबके लागे वो बढ़िया सोचते ना, आ जब देखबा कि नहीं करे तो बढ़िया छे लेकिन हमार घर के बच्चा नहीं छिए तो ओकर टांग पकड़ खींचे ले शुरू, ओकर अंदर नहियो कोनो आबि छे तैयो आगि निकालना, नहियो किछो छे तैयो ओकर देशन मंसूब करना। तो ई अल्लाह तो देख रहल छे ना। एक तो ओकरा तो अल्लाह अगर चाहना छे इज्जत देला तो कोई ओकरा जलील नहीं कर सकते, अगर अल्लाह चाहना छे नहीं देला तो हमरा आर के बिल कभी नहीं दे सकबे, लेकिन थोड़ा सा कोशिश हम कर देवे। अब कहानी में आवे छे किस्सा में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खातिर जे आग बुझा लगाल गेले ने जलबै ले, तो गिर जाकर फूंक मारे, ओकर फूंक मारे से की हेते, लेकिन ओकर नियत तो समझ में आबि गेले,
अब बैंक के बारे में आवे छे, मेढक के बारे में वो थू करे बुझबै ल, ओकर बुझाना से की बुझते, लेकिन नियत तो सामने आबि गेलै ना। तो अल्लाह ताला देख कि सबके नियत सामने आबि जेतै, ना हमर फूकै से आगि बुझतै आ ना हमर बुझबै से बुझतै, लेकिन कोशिश के नतीजा अल्लाह ताला जे देतै वो बहुत बड़ा हेतै। गलत करबै तो गलत, अच्छा करबै तो अच्छा। एहि लए कऽ एक आपस में मोहब्बत, एक आपस में दोसर के सलाम, नमाज पढ़े ला आबऽ लगबऽ तो सबके कह चल चल आधान भए गेलै, चल नमाज पढ़बै, भलाई के काम में एक दोसर के आगू बढ़बै ले कोशिश कर। अल्लाह ताला से दुआ छै कि अल्लाह ताला हमरो तोरो ई जे बात सब एलै या अमल के तौफीक नसीब फरमावे, और अल्लाह ताला एहिठिमा दीन के सरचश्मा बना दे बस्ती का, अल्लाह ताला इल्म के बहार एहिठिमा कायम कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आपके हमारे जुबान में وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ